Going to start our class. Uh, I hope you all are ready with your notebook. So, as you know, in the previous class, I have taught you all how to pass the journal entry in case of dissolution of the partnership firm, right? And today I will teach you how to prepare ledger means accounts at the time of dissolution of partnership firm in the same question. I will share the same question what I had shared in the previous class. Okay, so you all are supposed to take the screenshot again, or you already you having no need to take the screenshot of the question. But I think 2 days before you have taken the you should take today. Okay, so this is the chapter name. Already you know the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. There is a difference distinction between these two already had discussed. Okay, so now students, just I am here sharing the question, same question I am sharing. You all are supposed to take the screenshot. Here Sushant and Riya were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 31st March 2020 the balance sheet of the firm was as follows. Right, so here in front of you you will see the balance sheet. Okay, students, so you can read yourself or you can take first of all the screenshot of it, then you will check it. So just I am reading here the liability side. Sundry creditors rupees 30,000, Riya's loan rupees 10,000, Sushant wife's loan rupees 20,000, general reserve rupees 15,000, provident fund 20,000, investment fluctuation reserve 10,000, workmen compensation reserve 15,000. And now capital of Sushant and Riya 1,20,000 and 95,000 respectively. So here the total of balance sheet is 3,35,000. Now come to the asset side. Goodwill of rupees 10,000, right? And building rupees 1,20,000, machinery rupees 30,000, furniture rupees 40,000, debtors you will see 40,000 less provision 1,000, total is 39,000. Stock rupees 30,000, investment rupees 50,000, prepaid expenses rupees 5,000, advertisement suspense rupees 5,000, and cash rupees 6,000. So okay student, the same question is here. You will find here the advertisement suspense account is a fictitious assets now, because this is not a real asset, so we will not transfer into the realization. Already I have taught you all people. And cash account will not be transferred to realization account, because in realization account we transfer only those assets which can be realized into cash. Okay, so cash is itself cash, so no need to realize it, so we will not transfer. And from liability side we transfer the all those liability which are payable to third party like sundry creditors. Ria loan will not be transferred because Ria is a partner. Okay, so Ria is the firm's member, so her loan will not be transferred to realization account. Already have taught. Sushant wife's loan. So Sushant is a partner, but Sushant wife is not a partner, so she is a third person. So her loan will be transferred to realization account. एंड आफ्टर दैट प्रोविजन और रिजर्व में से क्या ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000 है. सो आई हैव टॉट ऑलरेडी यू पीपल कि वी ट्रांसफर ओनली दोज प्रोविजन एंड रिजर्व्स which are directly connected to any kind of assets, right? So here provision for doubtful debt is connected with the debtors, so provision for doubtful debt would be transferred to realization account. Provident fund is the part of liability, so it will be transferred along with the liability. Investment fluctuation reserve, so this is a reserve which has been created to compensate or to adjust the fluctuation in the price of investment. So this means this reserve is connected with the investment, so it should be transferred to realization account. Workmen compensation reserve,
Generally it will not be transferred to realization account. Okay, but in some cases, workmen compensation reserve account also be transferred. The situation is when there is a claim against workmen compensation reserve. Okay, now the question is, if there is a claim against workmen compensation, so how much amount of WCR should be transferred to realization account? So आप लोग को मैंने नोट लिखवाया था कि करना क्या होता है. देखो ध्यान से सुनना फिर से. Existing workmen compensation reserve and claim against it. क्लेम अगेंस्ट इट का मतलब, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 15,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन सपोज दैट 5,000 है, तो हम कितना रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में? सिर्फ 5,000, यानी विच एवर इज लेस. अगर 15,000 रुपये WCR और क्लेम 5,000 है तो 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में एज अ WCR, ठीक है. और बाकी का पैसा जो 10,000 बचेगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है. मान लो हम ठीक उल्टा बोल रहे हैं, अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 है और क्लेम जो है 20,000 है, यानी कि क्लेम तुम्हारा एक्सीड कर जाता है एग्जिस्टिंग रिजर्व से. एग्जिस्टिंग रिजर्व से क्लेम अगर से तुम्हारा एक्सीड कर जाता है तो मैंने क्या बताया, दोनों में जो कम होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट. तो कितना करेंगे? WCR 15,000 तब करेंगे अगर ऐसा होगा तो, और पेमेंट जितना क्लेम होता है वो पेमेंट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि दोबारा मैंने इसको रिवाइज कर दिया वर्बली, जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर the additional information of the same question. I hope you all have taken the essays of this. If you have not taken, you take immediately. Done? Aniket, done? Screenshot have been taken? Yes, sir. Okay, beta, fine. So now just note it down. You can take the screenshot of the additional informations. Their firm was dissolved on above date and the assets and liabilities were settled as follows. So now we will see here how it has been shared. The creditors is given in the balance sheet, the creditors were paid off. Paid off means payment kar dena. How? By giving him furniture of rupees 40,000 and full settlement, right. So ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्या लाइन लिखा है कि एक क्रेडिटर था जिसका फुल सेटलमेंट में हमने 40,000 रुपये वाला फर्नीचर दे दिया, ठीक है. दूसरा, रिया का जो लोन था इट वाज पेड एट पार. पार का मतलब हुआ कि जितने रुपए का लोन था उतने रुपए पे ही पेमेंट कर दिया गया. ओके. थर्ड कह रहा है देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 5,000. सो देखो WCR 15,000 का दिया था और क्लेम है 5,000, तो दोनों में जो कम है वो ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट. अब आते हैं सुशांत के बारे में. तो कह रहा है सुशांत took over the machinery in full settlement of his wife's loan. अपनी पत्नी का जो लोन था उसका फर्म में, उसको पेमेंट करने के बदले में वो बिजनेस से मशीन ले लिया. मतलब कि अलग अलग नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि वो लोन का पेमेंट करेगा और मशीन खरीदेगा, ये नहीं कह रहा है. वो कह रहा है कि लोन के पेमेंट करने के बदले में मशीन ले रहा है, यानी सेटलमेंट, ठीक है. तो एक एसेट ले ले रहा है और बदले में वो वादा किया कि हम लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, राइट. सो नाउ नेक्स्ट, बिल्डिंग वाज रियलाइज्ड एट रुपीज 1,50,000. तो बिल्डिंग की कीमत जितनी भी थी उसको सेल किया गया 1,50,000 रुपये में. और कह रहा है डेटर्स वर रियलाइज्ड एट रुपीज 39,500. और डेटर जितने का था आपको याद होगा 40,000 का डेटर था, लेस प्रोविजन 1,000, तो 40,000 का डेटर 39,500 में रियलाइज किया गया. फिर कह रहा है स्टॉक वाज रियलाइज्ड एट रुपीज 25,000 एंड इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. प्रीमियम मीन्स एक्सेस, एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है. अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट था और 10% प्रीमियम पे सेल किया गया तो 55,000 पे सेल किया गया, इट मीन्स ना. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज इनकर्ड रुपीज 500, राइट. सो यहाँ तक आई होप कि क्वेश्चन हो गया. यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट.
तो यू कैन टेक इट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है पिछले क्लास में, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं स्टार्ट करूँगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। इतना सारा मैं बताऊँगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, स्क्रीनशॉट हो गया अंकित, अनिकेत? Yes, sir. Okay, so I hope everybody has taken. So now be ready with your notebook. You can write, you can frame the format of the realization account as well, ठीक है। और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दोनों साथ साथ ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इमीडिएटली, और आप उसका सोल्यूशन भी कर लो ताकि आप बाद में उसे अच्छे से टैली कर सको, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट आप लोग ड्रा करो। इट इज जस्ट लाइक अ लेजर, यू नो, अकाउंट मीन्स लेजर। सो how is to be prepared? Yes, this is the format of ledger. Particulars rupees, date will not be written over here because we are dissolving the form on a closing date, so no need to write the date here. Date at the top may be written under the realization as at or for the year ended, whatever. So okay, particulars. So first of all, beta, what we do, you all have remember ki first we transfer the assets, then liabilities, then transfer the provision and reserve which are connected to assets, right? So now let us see in asset side. If you have taken the screenshot of the balance sheet, you will see ki what kind of asset should be transferred here. So I have already taught only those assets should be transferred to realization account which can be realized from the sale of it. ओके, जिसको कि बेचा जा सकता है वही एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और उसके बुक वैल्यू पर, ठीक है। बिके या ना बिके डजेंट मैटर, बट हमारी समझ से क्या क्या बिक सकता है, कहाँ से पैसा मिल सकता है, वो सारा एसेट ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। सो देखिए आप लोग, सबसे पहले गुडविल मैंने ट्रांसफ़र किया 10,000 का। आई होप कि यू ऑल आर एबल टू सी दिस। गुडविल आई हैव रिटन 10,000। देखो अब बैलेंस शीट में से सिर्फ कॉपी करना है बेटा। आप सभी लोग क्वेश्चन खोल लो, सामने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ बैलेंस शीट उसका सामने रख लो और देखो मैं उसमें से एसेट्स में से क्या क्या ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने गुडविल ट्रांसफ़र किया, 10,000 का दिया हुआ है। फिर उसके बाद बिल्डिंग 1,20,000 का दिया, देखो तो 1,20,000 रुपये का बिल्डिंग भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद तुम्हारा मशीन दिया है 30,000 का, तो देखो मैंने 30,000 का मशीन भी ट्रांसफ़र कर दिया। एसेट इधर उधर हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। मैंने जो ट्रांसफ़र किया है देख लो। इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया, जबकि इन्वेस्टमेंट बाद में होगा तो कोई मतलब नहीं है, आप पहले लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट देखो 50,000 का दिया है क्वेश्चन में, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद और क्या एसेट्स है, फर्नीचर भी दिया हुआ है 40,000 रुपये का, वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो देख रहे हो कितना सिंपल है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। सिर्फ बैलेंस शीट में से एसेट्स को उठा के हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में बस पुटअप करते जाना है। फिर देखो डेटर देखो बेटा कितना लिखा है हमने, 40,000। ध्यान रखना 40,000 पर्टिकुलर में दिया है, 1,000 रुपया माइनस किया गया था डाउटफुल डेब्ट और 39,000 अमाउंट में दिखाया गया था। लेकिन हम लोग जो दिखाते हैं यहाँ एसेट्स, वो बुक वैल्यू दिखाते हैं। बुक वैल्यू यानी प्रोविज़न माइनस करने से पहले वाला, क्योंकि प्रोविज़न इज़ अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन एसेट्स। ओके, सो प्रोविज़न को हम लोग अदर साइड में लिखते हैं। तो डेटर्स यहाँ 40,000 लिखा गया, राइट। और कौन सा एसेट बच गया आप चेक करो, स्टॉक। स्टॉक बचा है 30,000 का, इसके साथ और भी कोई एसेट्स आई थिंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे ख्याल से लगभग सारा एसेट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। क्या नहीं ट्रांसफ़र किया है आपको याद होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और कैश अकाउंट मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्योंकि कैश को रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, ये एक तरीके से एक्सपेंसेज होता है, लॉस है जो कि राइट ऑफ करना है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पैसा तो मिलना नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं लायबिलिटी साइड में कि क्या क्या ट्रांसफ़र करना है। सो नाउ यू हैव अ लुक। क्रेडिटर्स, तो संडे क्रेडिटर्स वाज गिवन ₹30,000, तो मैंने देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया 30,000।
फिर उसके बाद मैंने सुशांत वाइफ्स लोन ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि सुशांत की वाइफ पार्टनर तो है नहीं, सुशांत पार्टनर है, इसलिए इसका लोन जो होगा उसकी वाइफ का, स्पाउस का लोन थर्ड पार्टी का माना जाएगा और इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अब रिया का लोन देखो मैंने नहीं ट्रांसफ़र किया, ध्यान रखना, रिया इज़ द पार्टनर, तो ये पार्टनर है तो उसका अलग से अकाउंट बनता है, बट अदर देन पार्टनर्स लोन विल बी ट्रांसफर्ड। अब मैंने देखो प्रोविडेंट फंड ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि प्रोविडेंट फंड इज आल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटी, है ना। फिर इसके बाद अब रिजर्व और प्रोविजन ट्रांसफर करना है जिसका कनेक्शन एसेट से होता है। तो देखो आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने ट्रांसफ़र किया 10,000 का। ठीक है। सो ये क्यों किया, क्योंकि इसका कनेक्शन एसेट से होता है, इसलिए ट्रांसफ़र किया। अब और कौन सा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरली इसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको यहाँ तब ट्रांसफ़र करेंगे जब इसके अगेंस्ट क्लेम दिया होता है, और क्लेम है क्वेश्चन में 5,000 का बोला है ना, तो जितना क्लेम होगा या एग्जिस्टिंग रिजर्व दोनों में जो कम होगा वो ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो हो गया यहाँ पे। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट भी है, उसको भी ट्रांसफ़र करना है। यहाँ मैंने लिखा है कि नहीं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, ओके, आई थिंक आई हैव नॉट रिटन, I had missed this. So you should write the provision for doubtful debt over here, students. आप यहाँ पर लिख लो, अपने से नोटबुक बना रहे हो ना, यहीं पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नीचे, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000 आप लिख लो, नोटबुक में बना लो, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन पे वो 5,000 फिर आएगा। ठीक है। सो ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ 4,000 मैंने लिखा हुआ है, अब ये बताएंगे आगे। 1,000 रुपये का लिख लो, मैं अभी से बता रहा हूँ बार बार सभी लोगों को। यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नीचे लिख लो आप लोग अपने नोटबुक पे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000, क्योंकि इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके। देखो हमने एसेट्स को बेचा है, एसेट्स कैसे आया आप समझो। आपने एसेट्स को पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि बिल्डिंग 1,50,000 का बिका है, इन्वेस्टमेंट 55,000 का, डेटर्स 39,500 का। ठीक है। ये सब को सब जोड़ देंगे तो जितना हमारा पैसा आ रहा था वो 2,69,500 आ रहा था। तो मैंने लिखा बाई कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड, जितना हम एसेट्स बेचेंगे वो हम टोटल करके यहाँ दिखा देंगे। ठीक है। याद रखना कैश से पहले प्रोविज़न लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना, क्योंकि अभी मैं लिख नहीं सकता। अब इसके बाद एसेट रियलाइज हो गया, अब लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी का पेमेंट देखो क्रेडिट साइड में होता है, देखो ध्यान से, अरे सॉरी डेबिट साइड में, यहाँ लिखा है ना, टू कैश अकाउंट लायबिलिटीज पेड। तो लायबिलिटीज़ में क्या क्या पेड किया है, आपको याद होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000 का पेमेंट किया है, और प्रोविडेंट फंड 20,000 रुपये का, ये दोनों आपने पेमेंट किया है। ठीक है। क्योंकि और भी लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स का, सुशांत का वाइफ लोन, लेकिन क्रेडिटर और सुशांत के वाइफ का लोन का सेटलमेंट एसेट से हो गया। तो जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट किसी एसेट से हो जाता है तो हम एंट्री नहीं करते हैं पेमेंट की। और इसी तरह अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है अपनी वाइफ का लोन सेटल करने के लिए, तो भी हम एंट्री नहीं करते। तो ये दोनों उसी तरीके का इन्फॉर्मेशन था, तो इसलिए इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो पेमेंट क्या करेंगे, सिर्फ प्रोविडेंट फंड और WCR के अगेंस्ट जितना क्लेम है 5,000 रुपये का, वो दोनों जोड़ के पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद रियलाइजेशन पे एक्सपेंसेज हुआ है 500 का, तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेज 500 का हमने कर दिया। ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल करने पे देखो आप यहाँ पर जो आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ पर जो मैं फिर से रेक्टिफाई थोड़ा सा करा रहा हूँ, करेक्शन में करा रहा हूँ, आप उसे नोट कर लोगे। 3,54,500 है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ ध्यान रखना है तुम्हें कि 3,54,500 तब है जब यहाँ प्रोविज़न नहीं लिखा गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,000 से लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,55,500। ठीक है। और यही पैसा हम यहाँ भी लिखेंगे, और देख रहे हैं कि यहाँ डेबिट साइड का कम है, तो इन सबको जोड़ करके इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ जो 4,000 लिखा है वो 5,000 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1,000 रुपये यहाँ बढ़ेगा तो 1,000 यहाँ भी आएगा, और यहाँ पर फिर 5,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। अब ये 5,000 रुपये होगा क्या, जितने भी पार्टनर्स हैं सुशांत और रिया,
तो सुशांत और रिया के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखो आप, प्रॉफिट ट्रांसफर टू सुशांत कैपिटल एंड रिया कैपिटल, तो हमने यहाँ 2400 और 1600 लिखा है, वो 4000 को बांटा है। आप इसे क्या करोगे, 5000 करोगे, तो आप इसे बांटोगे जब, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 5000 बांटोगे तो कितना हो जाएगा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे। ये 4000 रुपया जो बटा है, ये आपका बटा है 8 फाइव 8 जा 8 2 जा, यानी कि 3:2 में शेयर किया गया है। जब 5000 लिखेंगे तो 3:2 में आपका 3000 और 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लोगे, अभी रेक्टिफाई कर लो, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं साथ में बताते जा रहा हूँ। you can take a screenshot of it. So done. Yes, महिमा यस सर। बेटा यही 5000 आ रहा था आपका ना? यस सर। हाँ, मैंने प्रोविजन नहीं लिखा है इसमें बाय मिस्टेक, सो यू शुड यू हैव रिटन ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000 इन क्रेडिट साइड। यस सर। हाँ, तो आप सभी लोग करेक्ट कर लो इसे, जो मैंने बताया। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख लो 1000 का, टोटल में आपका 1000 से इंक्रीज कर जाएगा। जब टोटल इंक्रीज करेगा क्रेडिट साइड का, तो डिफरेंस निकालने पे 5000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, so that 5000 should be divided between Sushant and Riya in their old profit sharing ratio 3:2। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं रिया का लोन पे। ठीक है, जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है, प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं जो पार्टनर ने दिया होता है, अगर है तो। सो लेट अस स्टार्ट लोन अकाउंट। सो हियर रियाज लोन अकाउंट, बेटा फॉर्मेट सभी लोग बना लो, बहुत ही सिंपल है रिया का लोन अकाउंट। फटाफट लाइन ड्रॉ करो। सो देखो आपके सामने आ गया रिया का लोन अकाउंट। सबसे पहले चूंकि लायबिलिटी में दिया है तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। कितने रुपए का लोन है, 10,000 का, राइट। सो बाई बैलेंस बीडी 10,000, और रिया का लोन हैज़ बीन पेड एट पार, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। जितने का लोन है उतना लिखा, टू कैश अकाउंट पेड हो गया, बस टोटल कर लो 10,000 खत्म। तो रिया का लोन अकाउंट फिनिश हो गया। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। डन। अनिकेत, रिया का लोन अकाउंट हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, सो आप लोग नोटबुक में भी बना सकते हो, पेन कॉपी लेकर बैठे रहो, बहुत सिंपल सा था। देखो बाई बैलेंस बीडी टू कैश खत्म, इतने पर ही। चलो अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट सभी लोग ड्रॉ कर लो अपने अपने कॉपी पे, हमारे साथ लिखो। चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट हमारा 4000 आया है, 5000 आना चाहिए था, उसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा नोटबुक हमारे साथ बनाते रहो। फटाफट लाइन ड्रॉ करो, पर्टिकुलर सुशांत रिया, पर्टिकुलर सुशांत रिया, जल्दी जल्दी करो, लाइन ड्रॉ करो। डन, फॉर्मेट बन गया, फटाफट फ्री हैंड लाइन ड्रॉ कर लो अभी। अंजलि, बन गया फॉर्मेट? यस सर। ओके, सो आप लोग फॉर्मेट फटाफट बना लिए होगे। सो नाउ अब हम बताने जा रहे हैं कैसे कैसे अमाउंट लिखेंगे। तो आप हमारे साथ लिखोगे, सिर्फ जहाँ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन मैं बताऊंगा वहाँ पर आप लोग सही कर लोगे। ठीक है, ओके। सो नाउ पहले सबसे हम लोग क्या लिखते हैं, एज यू नो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग you all are doing a study of the capital account, so first we should write the opening balance of the capital account. So I hope you all have taken the essence of the question. You will find the Sushant capital is given 1,20,000 and Riya's capital is given 95,000 na. So first of all we should write buy balance BD because it is given in liability side. So you should write buy balance BD, you can see on your screen. Buy balance BD, Sushant capital is 1,20,000 and Riya's capital is 95,000. So you should write in your notebook. Done. Opening balance is done. Buy balance BD. Okay.
So now second, after writing the balance BD, we will write the remaining workman compensation reserve, just like accumulated profit loss reserve. As you know, we start sharing in the old issue between old partners. So you will see in the question, the total workman compensation reserve is given of rupees 15,000 and there was claim against it 5,000. So remaining workman compensation is rupees 10,000. It should be divided between Sushant and Riya and their old profit sharing ratio. That is 3:2. So when you do calculate into 3:2 to the 10,000, you will find 6,000 and 4,000. Okay. So you will see here, Sushant's share is 6,000 and 4,000 for the Sushant and Riya. Right. Now next, you will see general reserve is also given in the same side. So general reserve should be distributed in the old ratio between Sushant and Riya. So 9,000 and 6,000 in 3:2, total 15,000 is given. Right? You should write along with me. Next, आप देखो अब क्या दिया है, एसेट साइड में आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होगा तो उसको हम लोग कैपिटल की डेबिट साइड में लिखेंगे. सो देखो, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और जितना भी दिया है वो सुशांत रिया में ओल्ड इश्यू में शेयर कर देंगे. तो कितना आ रहा है, 5,000 दिया था, तो 3:2 में आ जाएगा 3,000 एंड 2,000. राइट. सो ये सारा चीज़ हो गया. आप नोटिस किए होंगे कि क्वेश्चन में गुडविल वगैरह ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन उसका सेलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, इसलिए हमने कहीं उसको सेल नहीं किया. याद रखना है, सब पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं. अब हम लोग रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया है. चूँकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट 5,000 है, लेकिन हमने 4,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय मिस्टेक. सो आपको यहाँ करेक्ट करना है बेटा. देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुराना वाला जो गलत वाला था, 2,400 और 1,600, आपको यहाँ करेक्ट करना है. तो कितना कितना आप लोग लिखोगे यहाँ पे, सुशांत और रिया की जगह कितना कितना लिखेंगे, अंजलि बताइए. बाय रियलाइजेशन मैंने 24 से 1,600 लिखा हुआ है ना सुशांत रिया में, देखो आप कैपिटल में. अंजलि आप बताइए कि यहाँ पर एज पर 5,000, चूंकि प्रॉफिट 5,000 होगा तो यहाँ कितना लिखना चाहिए. अंजलि. यस सर. कितना लिखना चाहिए यहाँ. पता नहीं सर, मैंने क्वेश्चन अच्छे से देखा भी नहीं है अभी. तुम लेट ज्वाइन की हो. यस सर. ओके. अनिकेत. अनिकेत. यस सर. बेटा कितना लिखना चाहिए यहाँ. सर कहाँ. बाय रियलाइजेशन है स्क्रीन पे. स्क्रीन अभी शो नहीं कर रहा है सर, नेट पर प्रॉब्लम है. तो बताना चाहिए ना, कब से मैं शेयर किया. नहीं सर, उस टाइम उधर कर रहा था, इस टाइम नेटवर्क स्लो कर दिया. महिमा. महिमा. महिमा सिंह. हेलो. हाँ महिमा. महिमा स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर. यस सर. बेटा मैंने बाय रियलाइजेशन लिखा है वहाँ पे 2,400 और 1,600. यस सर. तो वहाँ कितना लिखना चाहिए हमें. प्रॉफिट 5,000 रुपये आया है ना. सर सुशांत में 3,000 और रिया में 2,000. हाँ करेक्ट. सुशांत में 3,000 और रिया में 2,000. तो आप सभी लोग अपने अपने नोटबुक पे लिख रहे हो, तो साथ में कितने लोग बता रहे नहीं आया, एटलीस्ट नोटबुक तो लेके बैठना चाहिए. जो लोग बता रहे नहीं समझ में आया, नहीं दिख रहा, मैंने बोला कि नोटबुक आप लेकर बैठो, मैं बता रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, तब तो क्लियर होता. जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा. ओके. तो सुशांत में 3,000 और रिया में 2,000 लिखेंगे यहाँ 2,400 और 1,600 की जगह. ये आप लोग कर लो, मैं नहीं अभी कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए ऑलरेडी वो मेरा लिखा हुआ है. ठीक है. तो नेक्स्ट यहाँ पे हो गया. अब इसके बाद टोटल करेंगे. तो टोटल करने पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे 1,37,400 आ रहा है, जहाँ यहाँ पर आपका 600 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, होगा ना. 600 रुपये ज़्यादा, क्योंकि 2,400 जहाँ लिखा है वहाँ 3,000 होना है. ठीक है. तो याद रखना आप सभी लोग,
तो वहाँ 3000 यानी कि 600 रुपया बढ़ेगा, तो 1,37,400 की जगह 1,38,000 हो जाएगा। आप सभी लोग उससे टोटल कर लो, 1,38,000 सुशांत का, ठीक है। और रिया का जो 1,06,600 आ रहा है, यहाँ 400 बढ़ेगा, तो रिया का 1,07,000 हो जाएगा, ठीक है। सो 1,38,000 सुशांत का और 1,07,000 रिया का टोटल आएगा। वही हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे डेबिट साइड में 1,38,000 और 1,07,000। फटाफट आप लोग कर लो इसको। अब हम लोग बैलेंस पता करेंगे, ठीक है। सो बैलेंस पता करने के लिए जितना आएगा वो इन लोगों को पेमेंट करना होता है। तो देखो बैंक अकाउंट से पेमेंट हम कर रहे हैं कितना, 1,34,400 और 1,04,600 की है, चूँकि ये इतना पैसा तब आया है जब हमारा टोटल 137,400 और 1,06,600 था। लेकिन जब हमारा ये टोटल बढ़ेगा, 600 से सुशांत का बढ़ेगा और 400 से रिया का बढ़ेगा, है ना। तो बैंक में जो बैलेंस भी आएगा इनको पेमेंट करने वाला, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इनका आ जाएगा 35,000 और 1,05,000। तो आप लिख लोगे यहाँ पर, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर याद रखो आप सभी लोग, ये जो टोटल है और ये जो टोटल, चूँकि यहाँ जो है और यहाँ है, ये जो मैं रेट से कर रहा हूँ, यहाँ 3,000 होगा, यहाँ 2,000 होगा, ठीक है। सो अब 3,000 यहाँ करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा 600 से, और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा 400 से, तो ये 138 हो जाएगा, ये 1,07,000। तो अब वही यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 600 इंक्रीज होगा, 1,35,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखेंगे 1,35,000, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये 35,000 बैलेंस आएगा, और इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,05,000, ठीक है। आप लोग कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1,07,000, ठीक है। 1,07,000 इधर, 138 इधर कर लोगे, इस तरीके से आप कर लोगे। तो चलते हम लोग, कैपिटल अकाउंट हो गया, यानी कि पेमेंट हो गया यहाँ पर 35 और 1,05,000। अब हम लोग करेंगे क्या, कैश अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें प्रूव होगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, क्योंकि कैश एक भी रुपये बचना नहीं चाहिए। तो कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर रेक्टिफाई करना पड़ रहा है। अब हम लोग करते हैं अगला, कैश अकाउंट। सो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कैश का बैलेंस लिखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा कैश अकाउंट का एसेट साइड में। तो देखो 6,000 रुपया दिया ओपनिंग बैलेंस, तो वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका दिया होगा रियलाइजेशन में 2,69,500 आपने एसेट रियलाइज़ किया है, ठीक है। तो एसेट रियलाइज़ किया, वो लिख लिया। फिर उसके बाद आपने लाइबिलिटी का पेमेंट किया और एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। तो लाइबिलिटी का पेमेंट किया है 25,000, और आपने फिर उसके बाद पेमेंट किया है 500 एक्सपेंसेस का, तो टोटल हो गया 25,500। ये आपने बाय रियलाइजेशन लिख दिया। फिर रिया का लोन आपने पेमेंट किया है 10,000 रुपये का। अब यहाँ पर जो सुशांत कैपिटल और रिया कैपिटल आएगा, यहाँ मेरा गलत होगा अमाउंट, तो आप उसे सही कर लोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,34,000, जो लिखा है 135 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 1,06,600, सॉरी 1,07,000 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आप लोग इसका टोटल करेंगे। तो टोटल करके देखो कितना आ रहा है, चूँकि कुछ एरर होने की वजह से डिस्टरबेंस हो रहा होगा यहाँ। सभी लोग टोटल करो अपने से।
दिया हुआ है 25,500, 2,75,000। 2,75,000 आ रहा है। 4 6 10, अच्छा 75,500। हाँ, और इधर का चेक करो, 25,500 प्लस 10,000 और 1,35,000 और 1,07,000, 2,77,500 आ रहा है। 277,500 आ रहा है क्या क्रेडिट साइड का? यस सर। और डेबिट साइड का 275,500। हाँ, तो कहीं टोटलिंग में वही हमारा जो मिस्टेक हुआ है उसी की वजह से आ रहा है, चूंकि हम पुराना वाला, अच्छा ये जो अभी करंट टाइम में जो लिखा है इसके हिसाब से सही आ रहा है अभी जो मैंने लिखा है? सर हाँ बोलो। हाँ तनिष्का बोलो। तनिष्का यस हाँ बोलो, क्या बता रही थी? सर, ये जो रियलाइजेशन मतलब बाय रियलाइजेशन आप लिखे हैं, हाँ इसमें 500 वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऐड करके लिखे हैं। हाँ हाँ, बोला तो मैंने 25,000 रुपया जो पेमेंट की हो लाइबिलिटी का और 500 रुपीज एक्सपेंसेज का, दोनों ऐड करके लिखा हुआ है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 बार लिखना पड़ेगा। बाय रियलाइजेशन एक बार 25,000 लिखोगी फिर, और एक बार फिर से लिखोगी बाय रियलाइजेशन 500। तो हमने टोटल बाय रियलाइजेशन को या नीचे ब्रैकेट में करके ऐड दिखा सकती हो, 25,000 प्लस 500, 25,500 रुपये, ठीक है। और ये बताओ कि इसमें जो टोटलिंग देखो, हम लोग का कैश अकाउंट दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में कुछ एरर हो गए हैं जिसकी वजह से टोटलिंग हम लोगों ने नहीं किया प्रॉपर। मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट हम लोग मिस कर गए थे, जिसकी वजह से 1,000 रुपया हमारा क्रेडिट साइड में बढ़ रहा था तो प्रॉफिट हमारा 5,000 आ रहा था, और हमने पहले से प्रॉफिट 4,000 लिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी इफ़ेक्ट आएगा वो कैपिटल पे पड़ता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट हमारा गलत आ गया होगा जिसकी वजह से हमारा कैश अकाउंट का टोटल अभी बराबर नहीं आ रहा होगा। तो हम जब सही करेंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा। सर एक आ रहा है। आ रहा है टोटल, देखो कितना। कैपिटल में आप 1,05,000 वो देखो सर बताए। हाँ बोलो बोलो। बाय रियलाइजेशन 25,500 है, फिर उसके बाद रिया के लोन तक तो सही है, फिर रियाज कैपिटल होगा 1,05,000 और फिर सुशांत का कैपिटल होगा 1,35,000 मतलब 1000, तो ऐड करेंगे तो 2,75,500 आ जाएगा। और फिर इधर डेबिट साइड में आएंगे तो 6,000 में 2,69,500 ऐड करेंगे तो सही तो आ रहा है। 1,35,000 इधर सुशांत कैपिटल कितना ऐड किया? 135। यस सर। और उसका कैपिटल कितना ऐड किया? 1,05,000। 1,07,000 होना चाहिए ना। 135 की 2,000 माइनस होगा, माइनस हो गया है 2,000 ना, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस एक्सपेंसेस। अच्छा, माइनस करने के बाद बैलेंस कितना आया? एक मिनट चेक करो, पीछा हम लेके आ रहे हैं। माइनस करने के बाद 1,05,000 ही आया अच्छा है, हाँ क्योंकि 1,07,000 हाँ आया हाँ, था। सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक आया। हाँ हाँ ठीक है, तो ये मैंने वहाँ गलत लिख दिया है ना। हाँ यस सर, तो यहाँ टोटल आ रहा है कैश अकाउंट हाँ का। हाँ आएगा, वही मैं कह रहा था जी कि टोटलिंग मिस्टेक है। देखो ये जो 1,06,600 लिखा है वो बाय मिस्टेक है। ये आपका रिया कैपिटल 1,05,000 होगा और सुशांत कैपिटल 1,35,000, राइट? यही यस ना? सर। हाँ तो यस आ जाएगा, सही कह रही हो। एक्चुअली वो वहीं पर टोटलिंग में मिस्टेक। 2,75,500 रुपये आ रहा है और इधर का भी 2,75,500 आ रहा है ना। तो ये यस टोटल सर। 2,75,500 2,75,500 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ टोटल आ गया आपका, सामने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट कर लेना सभी लोग बच्चों। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ मैं पेन से,
आप देखो ये जो दो अंडरलाइन में कर रहा हूँ ये 135,000 करना है। एक मिनट, यस, तो ये 1,35,000 करना है और इसको 1,05,000 करना है। तो याद रखना 134 को 135 कर लोगे, यहाँ पर 1 और 35, ठीक है, ये 135 कर लेना है और इसका जो है ये 1,05,000 करना है, 1,05,000, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हमारा जो फंस गया इधर, चलो ठीक है, सही कर लेना, वो इधर उधर हो गया। तो ये लिखेंगे तो हमारा ये टोटल आ जाएगा। तो आई होप कि रियलाइजेशन अकाउंट बहुत सिंपल था, एसेट लायबिलिटी सिर्फ ट्रांसफ़र करना था, फिर जो पेमेंट किया और रिसीव किया उसका लिखना था। लोन अकाउंट आपको समझ में आ ही गया। कैपिटल अकाउंट में कुछ है नहीं ऐसा, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह जो अगर बचा हुआ है तो उसे ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद रिलेशन का प्रॉफिट लॉस शेयर करना है, फिर जो डिफरेंस आएगा वो पेमेंट कर देना है, ठीक है। कभी कभी डेबिट बैलेंस आता है तो बाई बैंक करके वो लाएंगे। उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर कितने रुपए का एसेट सेल किया गया है वो लिखेंगे, फिर कितना पेमेंट किए हैं क्रेडिट में, क्या क्या पेमेंट किए हैं वो टोटल, तो जितना पैसा आया उतना चला गया यानी बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आप लोगों को यहीं तक करना है प्रैक्टिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं शेयर कर रहा हूँ अब लिंक, ठीक है। सो आज का क्लास आपका ओवर हो गया है, न्यूमेरिकल जितना था, और मैं जो अभी शेयर करूँगा वो आप ध्यान रखो, डू प्रैक्टिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल, जनरल एंट्री और लेजर। जनरल पिछले क्लास में पढ़ाए थे, लेजर आज पढ़ाएं, और मैं असेसमेंट लिंक सेंड कर रहा हूँ जितने लोग ने क्लास किया है। आई एम सेंडिंग द असेसमेंट लिंक नाउ इन द मैसेज बॉक्स एंड आल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। You all are supposed to tap the link and choose the correct answer from multiple options. The questions has been set on surface level only, यानी कोई डीप में कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है, सिर्फ हल्का फुल्का ऊपर ऊपर का क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैं शेयर कर रहा हूँ और आप लोग इसको करेंगे अभी। उसको सबमिट भी करना होगा सर? ऑटोमेटिक सबमिट करोगे बेटा तो आ जाएगा, अपना मार्क्स भी देख लोगे इमीडिएटली। पहले जब सबमिट करोगे तो मैसेज आएगा योर मतलब यू हैव सबमिटेड, फिर उसके बाद व्यू योर मार्क्स लिखा होगा ना, व्यू योर स्कोर, उस पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट इमीडिएटली योर मार्क्स। सो आप देखो मैसेज बॉक्स में सभी लोग, मैसेज बॉक्स दिख रहा है सभी को, उसमें एक लिंक मैंने भेजा, मैं फिर से भेज दे रहा हूँ, ये मिला पीयूष, आपको लिंक मिला? यस सर, मिल गया। मिल गया, आप क्लिक कीजिए आप लोग इसी लिंक पे। सभी लोग लिंक पे क्लिक कीजिए और क्लिक कर लेंगे, एक बार ओपन हो जाएगा तो ओपन रहेगा, मैं यहाँ से लीव कर दूंगा लेकिन वो रहेगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दे रहा हूँ। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखो, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप, यस, मैंने व्हाट्सएप में सेंड कर दिया, अब कर सकते हो। ठीक है, सो मिल गया सभी को, एवरीवन आर डूइंग। अमृता लिंक मिला? हाँ ठीक है बेटा, लिंक ओपन करो। ओपन हो गया या अभी टाइम ले रहा है? ओपन हो गया सर।
ओके हाँ, तो 10 क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट सबमिट कर लेंगे, ठीक है। सो हम क्लोज कर रहे हैं मीटिंग, आप सभी लोग उसे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है।